how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is The Beginning of the Struggle. The failure of the First War of Independence made the Indians think about the ills plaguing India. How could a small number of British rule over millions of Indians? Why many of the Indians supported the British in the War of Independence? It made them think of their shortcomings and many other social evils. Soon they realized and cause of their disunity and quarrel. It was Indians' narrow thinking and attitude of blind faith. Thus, this realization of common grievance resulted into a national awakening which we may call the beginning of the Indian national movement. For the first time, the Indians began to think and feel about the nation. फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो थी वो फेल हो गई थी. वहाँ से लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि कैसे हाउ द small number of Britishers are successful to control over the million of Indians, or why million of Indians, why many of the Indians they are supporting the Britishers and why they are not supporting the Indians in the war of independence. तो इन क्वेश्चन से उनके माइंड में एक क्या शुरू हुआ कि हमारा नेशन है ये, ब्रिटिशर्स जो हैं वो कैसे रूल कर सकते हैं और कैसे हम फ्रीडम पा सकते हैं. तो ये एक तरीके से हर एक भारतीय के दिल में यानी इन एवरी इंडियन हार्ट एक क्वेश्चन आता है कि दिस इज आवर कंट्री और हमें ये ब्रिटिशर से फ्री करनी है. और इस मूवमेंट का नाम दिया गया बिगनिंग ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट. नाउ नेशनल अवेकिंग. Many social thinkers and reformers touched all aspects of life, social, religious, economic and political. Foremost among them were Raja Ram Mohan Rai, Swami Dayanand Saraswati, Swami Vivekanand, Ishwar Chandra Vidyasagar, Sir Syed Ahmad Khan and Narayan Guru. ये बहुत सारे जो थे सोशल थिंकर थे. ओके जो हमारे देश के बारे में या फिर हमारी पर्सनल लाइफ के बारे में जैसे कि सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल हर एक अपनी जो विचार बताते थे और लोगों को इंडियंस को अवेक करते थे, जागरूक करते थे. They tried their best to remove social evils like sati, that is burning of widow, not allowing the widows to remarry, the practice of killing the girl child. Some scholars tried to awaken and arouse the feelings of self-respect in people about their rich civilization and culture. जो social thinker थे वो लोगों को जागरूक करते थे कि बहुत सारी social evil से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है. जैसे उस टाइम सती वॉज अ एविल जिसमें जो जिसके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी उसमें विडो को उसके साथ ही बर्न कर दिया जाता था. तो उन्होंने सोशल एविल जैसे कि सती प्रथा या फिर विडोज टू रीमैरी या प्रैक्टिस ऑफ किलिंग गर्ल चाइल्ड, दे हैव रिमूव्ड दीज सोशल एविल्स फ्रॉम इंडिया. एंड सम स्कॉलर्स दे हैव teach the Indians to awake and arouse the feelings of self-respect in people about their rich civilization and culture. Indians now began to form associations to develop independent thinking and activity. They set up institutions, school, etc. of their own. अब इंडियंस क्या चाहते थे? इंडियंस इंडिपेंडेंस की तरफ जाना चाहते थे, अपनी थिंकिंग को, एक्टिविटी को दे हैव टू रिफॉर्म. ओके, सो दे हैव सेट अप द न्यू इंस्टीट्यूशन, स्कूल्स एटसेट्रा ताकि वो दूसरे लोगों को भी वो चीज़ पहुंचा सकें. एजुकेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज सून स्प्रेड. Traders and businessmen were now eager to set up mills and factories on modern lines to make Indian goods. They began newspapers. They began to hold meetings and make demands about their grievance and fulfillment of their need. इस तरीके से लोग क्या बनाने लगे? एसोसिएशन, ग्रुप बनाने लगे, मीटिंग्स होने लगी और वो अपनी नीड को बताने लगे कि हमें क्या चाहिए. But one common refrain was that freedom from foreign rule was a must. Indian people realized that they could remove their backwardness by adopting good qualities of the British people.
They were modern education, industry, hard work and a liberal culture. और इस तरीके से उनके माइंड में एक ही चीज़ था कि हाउ दे हैव टू फ्री देयर नेशन फ्रॉम द फॉरेन रूल। इसलिए इंडियन पीपल ने रियलाइज़ किया, सोशल थिंकर जो भी लीडर थे उन्होंने रियलाइज़ किया कि कैसे हम ब्रिटिशर्स की गुड क्वालिटी को यूज़ कर सकते हैं उनके खिलाफ ही, जैसे देयर मॉडर्न एजुकेशन, देयर इंडस्ट्री, हैंड हार्ड वर्क एंड अ लिबरल कल्चर। नाउ इंडियन नेशनल कांग्रेस। In 1885, some thinkers formed an organization called the Indian National Congress. Many of the founder members later became important leaders of the freedom movement. The main aim of the Congress was rather limited at that time. It was only to draw the attention of the British government towards the difficulties and demands of the Indian people. One of the demands was to employ more Indians in its administration. जैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया में अपना रूल इस्टेब्लिश किया, वैसे वैसे इंडियंस की डिमांड बढ़ रही थी। उनकी एक डिमांड क्या थी, जो गवर्नमेंट है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन को लिया जाए। The Congress network soon spread all over the country. It consisted of people from every walk of life. The first session of the Congress was held in Bombay, in Mumbai, and influential persons from all parts of India took part in the session. Thereafter, the Congress held in session in different parts of the country every year. In all these sessions, there was a constant demand to let Indians manage their own affairs. और इस तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग्स होने लगी और उस मीटिंग में मेन जो था, मेन एजेंडा, मेन मुद्दा जो था वो क्या उठाया गया था कि कैसे हम अपने अफेयर्स को, यानी अपनी कंट्री के कैसे चीज़ों को, रूल एंड रेगुलेशंस को कैसे हम खुद मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द मॉडरेट्स एंड द एक्सट्रीमिस्ट्स। The early demands of the Congress were a large share in the administrator of their country, removal of censorship of the press and a solution to repeated famines. And these demands were moderate in nature and had been made only through requests. Therefore, the humble leaders of the Congress were known as moderate. Okay, Indians की एक डिमांड थी कि एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन को एम्प्लॉय किया जाए, इंडियन को लिया जाए। ओके, तो ये जो पार्ट था, ये प्रपोजल था जो कि एक बहुत अच्छे मैनर से, अच्छे तरीके से ब्रिटिशर्स के सामने एक टाइप ऑफ हम्बल रिक्वेस्ट ये की गई थी। तो जो लीडर्स थे ये हम्बल रिक्वेस्ट कर रहे थे, दैट वर कॉल्ड मॉडरेट, जिनमें से कुछ फेमस थे जैसे कि दादा भाई नौरोजी एंड WC बनर्जी, उसके अलावा SN बनर्जी, G सुब्रमण्यम अय्यर एंड गोपाल कृष्ण गोखले एंड द Bruddin Tayabji. Gradually, some congressmen came to feel that repeated requests of begging could not get them a share in the administration of the country. उसके अलावा एक दूसरा ग्रुप था कांग्रेस में, वो क्या बिलीव करते थे, वो बिलीव करते थे बार बार इनके आगे बैक करने से या अपील करने से कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। द ब्रिटिश वुड नॉट गिव मोर पावर अनटिल स्ट्रॉन्ग मेजर्स वर टेकन। ब्रिटिशर्स जब तक ये बात को नहीं सुनेंगे, जब तक हम कोई उनको पावर नहीं दिखाएंगे। फाइन। These strong leaders come to be known as the extremists, और इन लीडर को क्या नाम दिया गया, एक्सट्रीमिस्ट। ओके, जो एक अच्छे तरीके से हम्बल रिक्वेस्ट के तरीके से जो लीडर्स को ने प्रपोजल रखा था कि ज़्यादा से ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियन को लिया जाए, दे वर कॉल्ड मॉडरेट्स, जिनके लीडर्स हम पढ़ चुके हैं। और कुछ लोग थे अनदर ग्रुप जो चाहते थे कि ब्रिटिशर्स ऐसे नहीं मानेंगे, हमें अपनी पावर दिखानी होगी, कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग मेजर लेने होंगे ताकि वो हमारी बात को माने, और उनको उस ग्रुप को क्या कहा गया था, एक्सट्रीमिस्ट। एमंग दीज वर बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल एंड लाला लाजपत राय एंड WOC पिल्लई। तिलक declared that freedom is my birthright and I shall have it. तिलक जो कि एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, उन्होंने डिक्लेयर किया जो फ्रीडम है दैट इज़ माई बर्थ राइट, और मुझे ये चाहिए।
He severely criticized British policies regarding Indian people through his newspaper केसरी, और अपने न्यूज़पेपर केसरी में उन्होंने ब्रिटिशर्स पॉलिसीज़ को, ब्रिटिशर्स के जो रूल एंड रेगुलेशन के, उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया. ही वॉज इम्प्रिजन्ड फॉर दिस, और उसके लिए उनको जेल भी डाल दिया गया. अ नंबर ऑफ यंग मैन जॉइंड द एक्सट्रीमिस्ट. बहुत सारे जो यंग मैन थे उन्होंने कौन से ग्रुप को सपोर्ट किया? एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को. Now the partition of Bengal. Gradually, the whole country began to support the Congress in its call for freedom. People began to demand more rights and began to criticize the British policies more and more. ग्रेजुअली धीरे धीरे पूरी कंट्री के जो लोग हैं वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को सपोर्ट करने लगे फ्रीडम के लिए, और एक दूसरे के साथ अपने राइट के बारे में, अपनी पॉलिसीज़ के बारे में शेयर करने लगे. एंड ब्रिटिश पॉलिसीज़ को क्या करने लगे? क्रिटिसाइज करने लगे. नाउ कांग्रेस वॉज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्यू पीपल बट वॉज अ नेशनल मूवमेंट. नाउ कांग्रेस एक क्या बन गया था? एक छोटा सा ग्रुप नहीं था, वो एक नेशनल मूवमेंट बन गया था. दिस नेशनल मूवमेंट मेड द ब्रिटिश पैनिक, और इस नेशनल मूवमेंट को देख के ब्रिटिशर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा डर गए थे. दे मेड laws to ban the movement and activities of the people. So उन्होंने ऐसे लॉ बनाए और ताकि जो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस मूवमेंट है इसको वहीं पर सुप्रेस कर दिया जाए. बट द मूवमेंट कुड नॉट बी सुप्रेस्ड. देन द ब्रिटिश फॉलोड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल. उसके बाद ब्रिटिशर्स ने एक पॉलिसी को अपनाया, क्या? डिवाइड एंड रूल. दे मेड अ प्लान टू डिवाइड द पीपल इनटू हिंदू एंड मुस्लिम्स. और क्या उनके दिमाग में आया कि हिंदू और मुस्लिम्स में दो ग्रुप में कंट्री को बांट देते हैं, ताकि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी है इसको एसोसिएशन को बीच में ही ब्रेक कर दिया जाए. इन बंगाल वेयर द मूवमेंट्स वॉज वेरी स्ट्रोंग, दे डिवाइडेड द स्टेट इनटू 2 पार्ट्स इन 1905. इस तरीके से बंगाल में जहां ये मुद्दा यानी हिंदू एंड मुस्लिम के बीच में ऑलरेडी एक वॉर चल रही थी, एक लड़ाई चल रही थी, उन्होंने बंगाल को उठाया एंड दे डिवाइडेड द स्टेट इनटू 2 पार्ट्स इन 1905. इस तरीके से in 1905 he divided the Bengal in 2 parts. One part of the divided Bengal was the have Hindu majority and the other is Muslim majority. Both Hindus and Muslims of the whole country protested very strongly against the mischievous plan. Next is the Swdeshi movement. People now decided to boycott British goods to counter the partition plan of the British. अब पीपल जो थे, पूरी कंट्री के जो लोग थे, वो ब्रिटिशर्स के जो भी सामान थे उसको बायकट करने के लिए उन्होंने एक प्लान शुरू किया. इट वॉज नेम्ड एज द स्वदेशी मूवमेंट. अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल took a pledge to use only Indian goods. और इस प्लान को क्या नाम दिया गया? It was named as Swdeshi movement. A large number of people took a pledge to use only Indian goods. Students and women opened shops where only Swdeshi goods were sold. They also persuaded and stopped people not to go to the shops where British clothes were sold. और ऐसी शॉप ओपन की गई जिसमें सिर्फ स्वदेशी यानी कि the things made in India they were sold only. Okay? और इस तरीके की चीज़ें सोल्ड आउट होती थी और जो यंग जनरेशन थी लोगों को स्टॉप कर दिया गया था ताकि वो ब्रिटिशर से सामान ना खरीदें और ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया की बनी हुई चीज़ें यूज़ करें. एंड the day appointed for the partition of Bengal was observed as a day of mourning and fasting. People took out processions singing and Vande Mataram. The lathis, bullets and imprisonment did not weaken the movement but strengthened it. The British had to accept their defeat openly. In 1911, they put an end to the partition of Bengal and make it a single state again. और इस तरीके से स्वदेशी मूवमेंट से लोगों ने बहुत सारे अलग अलग जगह पर प्रोटेस्ट किए. फॉरेन क्लॉथ को बर्न कर दिया जाता था, फॉरेन गुड्स को बर्न किया जाता था और सब इंडियन ने कसम खाई थी कि हम सिर्फ मेड इन इंडिया ही गुड्स और क्लॉथ्स यूज़ करेंगे. इस तरीके से पार्टीशन ऑफ बंगाल के लिए भी बहुत ज़्यादा हर जगह पर दंगे हो रहे थे और लोग क्या चाहते थे कि बंगाल को एक कर दिया जाए. तो
ब्रिटिशर्स ने अपनी डिफीट को ओपनली एक्सेप्ट किया एंड इन 1911 फिर से बंगाल को क्या कर दिया गया, यूनाइट कर दिया गया, एक सिंगल स्टेट बना दिया गया। नेक्स्ट इज राइज ऑफ द रेवोल्यूशनरीज। Some people thought that force and violence would be more effective than peaceful agitation and boycott. They decided to fight back with arms. They were mostly young and always prepared to sacrifice their life for India's freedom. They were called revolutionaries. रेवोल्यूशनरीज पीपल कौन थे? ऐसे यंग पीपल जो कहते थे कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये सिर्फ वायलेंस से ही ख़त्म हो सकती है, पीसफुली ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। अगर ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर वायलेंस करते हैं तो हमें भी बदले में वायलेंटली काम करना होगा। अगर वो वेपन से वॉर करते हैं तो हमें भी वेपन से ही वॉर करनी होगी। ये ऐसे लोगों का एक ग्रुप था, एक यंग पीपल का, जो हमेशा अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करने के लिए, देश के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहते थे। और इस ग्रुप को क्या नाम दिया गया? रेवोल्यूशनरीज, यानी कि क्रांतिकारी। The British sent many of these young people to jail, and Britishers, they have sent these type of revolutionaries in jails. A young boy of 15 named Khudiram Bose was hanged to death as he had thrown a bomb on the carriage of a British judge who had sentenced Swadeshi workers to serve punishment. और एक 15 साल के ऐसे रेवोल्यूशनरी को, जिसका नाम था खुदीराम बोस, उसको हैंग कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि उसने एक बॉम्ब डाला था ऐसे ब्रिटिश जज पे जिसने स्वदेशी वर्कर को बहुत ज़्यादा पनिशमेंट दी थी। The revolutionaries spread from Bengal to the whole country. Some revolutionaries operated from England and America as well. रेवोल्यूशनरीज तो जो थे ये देश के कोने कोने में थे, बंगाल में भी थे ऐसे, और कुछ लोग इंग्लैंड एंड अमेरिका से भी काम कर रहे थे। Now some people waged a struggle for India's freedom from outside the country. For example, Madam Kama. Madam Kama brought a newspaper that is called Vande Mataram from Geneva. Narendranath Chattopadhyay formed an association in Berlin. Raja Mahendra Pratap and Maulana Barkulla guided the freedom movement from Kabul. Punjabis settled in America formed the गदर पार्टी टू हेल्प द रेवोल्यूशनरीज। इस तरीके से जो फॉरेन कंट्रीज में इंडियंस थे उन्होंने भी रेवोल्यूशनरीज की बहुत ज़्यादा हेल्प की। Realizing the Indian awakening, the British tried to pacify Indians. They allowed some Indians who were elected by the people to join the legislative assembly, but they had no power except to advise and criticize. However, the British continued with the old policy of divide and rule. They made religion the basis of the electing Indian representative. This destroyed the good relation between the Hindus and Muslim. जब एक तरफ इंडियंस दे वर यूनाइटेड टू टेक द फ्रीडम ऑफ इंडिया, और ब्रिटिशर्स जो थे वो अपने डिवाइड एंड रूल में कंटिन्यूड थे, एंड दे मेड द रिलीजन द बेसिस ऑफ देयर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी. दिस डिस्ट्रॉयड द गुड रिलेशन बिटवीन द हिंदू एंड द मुस्लिम्स ऑफ इंडियंस. मीनवाइल द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1914. To take help from Indian people, the British convinced them to give freedom after war. और 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होती है, एंड ब्रिटिशर्स प्रॉमिस करते हैं इंडियन से अगर वो ब्रिटिश इंग्लैंड का साथ देंगे तो आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वो उनको फ्री कर देंगे. इंडियंस हेल्प द ब्रिटिश इन देयर वॉर एफर्ट्स. मैनी इंडियन सोल्जर्स fought in battles in Europe to defend the British. Thousands of them lost their lives. At the end of the war, the Indians found that the British had strengthened their hold on Indians. They made very strict laws and implemented them harshly. और इंडियंस ने ब्रिटिशर्स की हेल्प भी की, लेकिन मीनवाइल ब्रिटिशर्स खुद को और स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं और स्ट्रॉन्ग लॉज बना देते हैं ताकि वो इंडियन को फ्री ना छोड़ें. इट वॉज एट दिस टाइम दैट एन इंडियन लॉयर Mohandas Karamchand Gandhi returned to India from South Africa. His arrival in the Indian political scene changed the history. और meanwhile किसकी एंट्री होती है साउथ अफ्रीका से? मोहनदास करमचंद गांधी, जो इंडिया के एक लॉयर के रूप में इंडिया में आते हैं और पूरा सिनेरियो, पूरा सीन जो है पॉलिटिकल सीन वो चेंज कर देते हैं.
For the next 30 years or so, he led the struggle of Indian people. और 30 साल तक 30 years तक उन्होंने ये स्ट्रगल की, इंडियन पीपल के लिए स्ट्रगल किया और फ्रीडम के लिए हमें पूरा सपोर्ट किया, और उनकी हेल्प से ही 1947 में इंडिया आज़ाद हो जाता है. नाउ हियर इज द क्लासरूम एक्टिविटी. Congressman believing in Declaration of Freedom. Who was that? You have to write yourself. Okay. I hope children you have understood the chapter. Read it once again and do the exercise yourself.